नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की जाएगी। आयोग निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। हालांकि फाइनल रिपोर्ट देने से पहले आयोग शीघ्र ही ड्राफ्ट तैयार करेगा और उसे लोगों के बीच लाया जाएगा, जिस पर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। परिसीमन आयोग के सदस्य वे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट संकेत दिए कि परिसीमन में किसी तरह के भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। आयोग का लोगों के बीच ड्राफ्ट लाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लोगों को अगर इसमें कोई भी कमी या भेदभाव होता नजर आता है तो वो उस पर अपने मन की बात खुलकर रख सकते हैं। उसके बाद ही परिसीमन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पीडीपी की तरफ से आयोग से मुलाकात न किए जाने संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में चंद्रा ने कहा कि हम चाहते थे कि हर कोई हिस्सा हमसे मिले, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि ये प्रक्रिया चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए चलाई जा रही है तो उन्हें इस वहम को अपने दिलों दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम खुले दिल से आए थे और ये ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे पूरी पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय दौरे के दौरान 290 से अधिक समूहों से मुलाकात की, जिसमें 800 व्यक्ति शामिल थे। इस दौरान लोगों ने परिसीमन को लेकर अपनी मांगे रखी, कई मुद्दों को उठाया और सुझाव भी दिए। A draft of the deliberation will be prepared. Inputs of the associate members who are part of the commission will also be taken before draft is made public. Thereafter, draft recommendations will be put in public domain for comments. This is a very important thing which I like to share with the media. That after hearing all these persons and after hearing the associate members also, the draft will be prepared and it will be put in the public domain for their comments, for their concerns on that particular thing, and only after seeing all that the comments on that particular draft, the final draft will be. So the opportunity will be given to the public at large to lodge their objections again on a draft which we will be sending, will be making, and again that only then the things will be finalized. So our purpose of the commission is to take view of all stakeholders in this particular exercise. This should be with all views which are possible on this issue. Only then we will be the secretary of the UT today in the morning, and we have directed him to nominate one officer not below the rank of ADC to work as a nodal officer for the work of delimitation under the supervision of the DC. So that if a person is required still now to give some suggestion, if they want to give some information on the delimitation, they can submit their memorandum, they can submit their representation to that nodal officer, and by the evening this will be finalized that who is the nodal officer in the office of the DC, and that will also be communicated, the representation will be communicated to the delimitation commission for its consideration. So our purpose is that everyone who feels like to give any suggestions on this issue should give it to us. They can also send their suggestion directly to the Secretary Delimitation Commission, and because we have visited so many persons, we have met so many persons, still if some more persons want to give suggestions, they are most welcome, and they should give it to the nodal officer or to the commission directly, and the commission will definitely examine all the present issues. There's nothing has been prepared. Nothing. And before starting our exercise, we want to have exercise, we want to have the views of other persons. If you have already done, there is no need to come. You could only take exercise and you would have done that. So through you also, I would like to communicate that these apprehensions in the mind of any person, if it all, they should go away. And commission will do its work in absolutely very transparent manner and as per the constitutional mandate to us. And that is why we are here, and that is why we have met around 800 persons from 290 groups, and we will try to come to consider those representations and how best we can consider them. So these apprehensions should absolutely
साउथ कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली मुठभेड़ में शामिल आतंकी फरार होने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश में घंटों तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन जब आतंकियों का इलाके में मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला तो ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया। पुलिस के अनुसार रेडवानी इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना वीरवार देर रात को मिली थी। सूचना मिलते ही एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने रात को ही इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी थी। आतंकियों की ओर बढ़ रहे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस बीच सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा था, परंतु वे नहीं माने और गोलाबारी जारी रखी। इससे पहले कि सुरक्षा बल आतंकियों को पूरी तरह घेरते, आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने भी उनका पीछा किया और उन्हें ढूंढ भी निकाला, लेकिन एक बार फिर आतंकी भारी गोलाबारी का सहारा लेते हुए मुठभेड़ स्थल से बच निकले। अभियान के दौरान कुलगाम में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। आतंकियों की तलाश में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु घंटों तक चले इस अभियान के दौरान भाग निकले आतंकियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। दोपहर तक यह पुष्टि हो गई कि आतंकी इलाके में मौजूद नहीं है, तो सुरक्षाकर्मी अपना ऑपरेशन समाप्त कर वापस लौट आए। सुचेतगढ़ की सई पंचायत के सरपंच देवराज चौधरी पर बीती रात उनके आवास पर हुए हमले के लिए स्थानीय डीडीसी सदस्य के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सुचेतगढ़ के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आज एसडीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस पर इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में इन लोगों ने एसडीपीओ के साथ मुलाकात कर उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। उनका कहना था कि पुलिस अगर इस मामले में कोई कार्रवाई ना कर पाई तो इससे साफ जाहिर है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। जिंदाबाद। और मेरे घर के सामने, मेन रोड के ऊपर मेरा घर है। और हमारे जो सरपंच भाई हैं उन पे हमला होता है और पुलिस उसके साथ हुए हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि इतनी देर से अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरी आपके माध्यम से ये डिमांड है और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसे कल्प्रिट हैं जिन्होंने कल रात को चौधरी देवराज जी जो हमारे सरपंच सही से हैं, इनके घर के बाहर जो हमला किया है और इनकी बाइक के जो हाथ काटा है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं उन कल्प्रिट को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। अगर जहां पे कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो ये साफ साफ दिखता है कि पुलिस कहीं ना कहीं उनके साथ मिली हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नाम आया है डीडीसी मेंबर का, क्या नाम है सर उनका, जो तरनजीत सिंह टोनी, जो कि यहाँ पे गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है। मैं और हमारे ये जितने भी सरपंच भाई आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे जो लीडर है इनको बाइकआउट करना चाहिए। मेरी बाइक बाहर खड़ी थी, बाइक को तोड़ा, धोखे से उन्होंने काटा, मेरे गेट के ऊपर उन्होंने आकर मारा और शॉटिंग की, जोर जोर से उन्होंने नारे लगाए, टोनी जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे घर के अंदर जो है, अगर मैं बाहर निकलता तो हो सकता है वो मेरे को भी अटैक कर। सर कौन आदमी थे वो, उनके नाम को? तरनजीत सिंह टोनी के पाले हुए गुंडे थे और उन्होंने जहां जहां भी आज तक जितनी भी इस किस्म की घटनाएं हुई हैं, वही लोग इन्वॉल्व हैं, पक्के लोग हैं उसके पक्के, ये जिन्होंने ये काम करते हैं मारपीट का। उसमें एक एसपीओ है, गवर्नमेंट की नौकरी, वो एम्प्लॉइज है, उसके अलावा और भी लड़के हैं, मेरे साथ और लोग भी रहते हैं। गलियों में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं अगर सरपंच सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ। डोगरा सदस्य सभा ने परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे का स्वागत करने के साथ साथ जम्मू के सियासी दलों व संगठनों द्वारा आयोग के समक्ष अपने मन की बात कहने पर उनकी सराहना की है। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सभी दलों व संगठनों से संयुक्त रूप से एक ज्ञापन तैयार कर उसे आयोग को सौंपने की मांग की, ताकि जम्मू के साथ भेदभाव की शिकायतों को दूर किया जा सके।
मैं ये स्वागत करता हूं जम्मू के लोगों का कि बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे थे, बड़ी संस्थाएं वहां पहुंची थी। मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनके अंदर अवेयरनेस आई है और उनसे अपील करता हूं कि आओ इकट्ठे होकर एक मंच से एक मेमोरेंडम बना के एक आवाज हम जम्मू की निकालें, ताकि जम्मू के साथ जो 72 साल बेइंसाफ हुआ है अब ना हो। और वो इंसाफ अगर जम्मू को चाहिए तो पहला स्टेप यही है कि यहाँ डिलिमिटेशन ठीक हो, जम्मू को सीटें बराबर मिलें। ये मेरा कहना था। महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश कांग्रेस की महिला इकाई ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। महिला इकाई ने आरोप लगाया कि सबका साथ और सबका विकास करने के दावे करने वाली केंद्र सरकार कुछ बड़े पूंजीपतियों का विकास कर रही है और आम लोगों की इसे कोई फिक्र नहीं है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे महिलाओं के लिए अब चूल्हा चौका करना भी मुश्किल हो चुका है। बातें तो बड़े जुमले और वादे करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लोगों ने भरपूर इनका साथ दिया, पर विकास इन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी का किया। हमारी महिलाएं जो हैं 2 वक्त की रोटी उनके लिए जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई से त्रस्त है। 890 रुपए का सिलेंडर हो गया है। पहले पूरा परिवार 890 रुपए पे चलता था। अब कोई दिन ऐसा नहीं है कि हर वर्ग के लोग जो हैं सड़कों पर उतर के अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं। इनके भाजपा के आश्वासनों से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमें चाहिए खाना, कपड़ा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए, ताकि लोगों को अपनी परेशानियों से राहत मिल सके। इस समय आरसपुरा और बिश्नाह तहसील के किसान सिंचाई को लेकर बेहद परेशान हैं। नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने से यहां के किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अपनी फसल को उजड़ता देखकर किसान बेहद परेशान है, लेकिन इसकी परेशानी का समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। ऊपर वाले की बेपरवाही और सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते भीषण गर्मी में इस समय धरती का सीना इस तरह फट रहा है कि खेतों में पड़ी ये दरारें चीख चीख कर पानी की मांग कर रही हैं। पानी न मिलने से इन खेतों में लगी धान की पौध अब अंतिम सांसें गिन रही हैं। धान की इस पौध की उखड़ती सांसों को बचाने के लिए किसान हर संभव प्रयास कर रहा है। कोई ट्राली में पानी लेकर तो कोई नल से पाइप लगाकर धान की पौध की प्यास बुझाने का प्रयास कर रहा है। नहरों में पानी न उपलब्ध होने के कारण धान की पौध के साथ साथ मवेशियों का चारा भी भीषण गर्मी की भेंट चढ़ गया है। 12 बंदी का पानी दिया देनो, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਤੜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫੱਤੂ ਚੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਗਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਬਚੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਐ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲਾ ਬਣੇ ਹੁਲਾ ਆਖਦੇ ਕਿ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸਲਾ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਿਲਾ ਇੰਨੀ ਔੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਜਾ ਗਿਆ ਸਰ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਸਾਡੇ 6 ਚੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਵਾ। ਡੰਗਰੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੀ ਆਗੋ ਜੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਡੰਗਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਰਿਹਾ। ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਹੋਈ ਨੇ ਪੱਠੇ, ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਕਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਆਹ ਗਈਆਂ, ਸੋਕਿਆ ਕੇ ਲਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਪਨੀਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੰਗਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। किसानों को जहां एक और सिंचाई विभाग ने मायूस किया है, वहीं इन्हें इस बार बिजली विभाग का भी सहयोग नहीं मिल रहा। पहले किसान जब नहरों में पानी नहीं होता था तो अपने मोटर पंप से खेतों की सिंचाई कर लेते थे, लेकिन इस बार बिजली की कटौती ने उनसे सिंचाई का ये विकल्प भी छीन लिया है। बत्ती भी नहीं आती, पानी किथों लाना? तो कोई मोटर सारे ला रही, कई मोटर ला रही, कई नहीं मोटर, पानी किथों लाना अपनी? खेतों में पड़ी ये दरारें किसानों की परेशानी की कहानी बयां कर रही हैं।
किसान की बेबसी तो देखिए, उसके सामने उसकी फसल उजड़ रही है लेकिन वह इसे बचा नहीं पा रहा। अपनी उजड़ती फसल को देखकर अब किसान को अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी है। ये जमीना पर सारा ये फसल नहीं होया, चाहे खाना की है, बच्चे की खिलाना है, और दसो कारोबार दी सारा इहदे पर है, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, तो जमीना पर सारा जे अं 6-7 हज़ार रुपया हूँ एड़ा दे गड़िया, अं कुत्थों देगे अपना फसल, कुत्थों देगे? सारा फसल सुक्की है, साढ़े मुंजियां सुक्की हुई हैं, वो उपर जाइए तक बिल्कुल मुंजी सुक्की हुई है, एड़ी मुंजी सुक्की हुई है, पनीर सुक्की हुई है, बार्डर ते अस रौने आ, साढ़ा कारोबार सारा यो है, धियां पुत्तर ढंग ही करने, अस कुत्थों करना? किसान पानी को लेकर लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन इसकी आवाज ना तो सिंचाई विभाग को सुनाई दे रही है और ना ही जनप्रतिनिधियों को। इस मुसीबत की घड़ी में कोई भी बेबस किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, जिससे किसानों में भारी रोष है। सर कोई नहीं आया, आंदे उस लगना जिले बोल लेने बरना कोई नहीं आता, कोई नहीं आया इधर, बिल्कुल नहीं आया था, कोई जिलेदार छड़िए कोई आया नहीं इधर ना, बिल्कुल नहीं आया, कोई दिखा नहीं आनी है, पुछया नहीं आनी अज तक तो पानी पुजा नहीं पुजा, पनीरियां सुक्का दियां या की गल ना, कोई दिखा नहीं जनानी भरती है। लीडर नहीं आया, कोई नहर का अफसर कोई इधर दर्शन नहीं दिया रहा, ठंडिया कोठियां जो आराम करना सुते थे ना, उन्हें क्या पता भी इतना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ बत्ती है, जी बत्ती है एवं अद्धा घंटा आती है, तो वो ना डंगरे पानी पिलाने जोगे, ना कोई नहाने वास्ते, बुरी हालत, आपू पीना मुश्किल हो गया। अगर सरकार और सिंचाई विभाग का यही रवैया रहा तो ना खेती बचेगी और ना ही किसान। अगर ऐसा हुआ तो ये ना तो देश के लिए अच्छा होगा और ना ही आम जनता के लिए ठीक होगा। आरएसपुरा से राकेश शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। गर्मी में हो रही बढ़ोतरी के साथ साथ जम्मू और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली पानी की समस्या भी लगातार बढ़ोतरी उसमें हो रही है। बिजली पानी की परेशानी को लेकर बड़ी ब्राह्मणा की तेली बस्ती की महिलाओं ने आज बड़ी ब्राह्मणा स्थित जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से अपनी परेशानी का समाधान करने की गुहार लगाई। इन महिलाओं का आरोप था कि पिछले 1 महीने से वो बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी उनकी इस परेशानी का कोई हल नहीं निकाला जा रहा, जिसके कारण इस गर्मी के मौसम में उनका जीना मुहाल हो चुका है। हमारे मोहल्ले का 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर गली वार्ड का बहुत बुरा हाल है सर। 1 महीना हो गया, हमने इतने परेशान, इतने खज्जल हो रहे हैं, कोई पूछने की बात नहीं। नहर पे कपड़े धोने जा रहे, पानी सवाई इतनी परेशानी नहीं, इतनी परेशानी। चल 32 सवाई तो बंदा रह भी सकता, पानी सवाई कैसे रहेगा? इतनी गर्मी है, क्या करेंगे? बोलो आप ही बोलो, क्या कर सकते हैं हम? कितने दिनों से पानी नहीं है? हो गया पूरा महीना हो गया, महीने से ऐसे हाल हो रहा है हमारा। 2 मिनट पानी छोड़ते हैं, 1 बाल्टी भरती है, जो उनके दफ्तर जाते हैं तो बोलते हैं बाल्टी लेके दफ्तर जाओ। हमारी औरतों को ऐसे बातें बोलते हैं। पानी की बड़ी परेशानी आती है, बिजली की बड़ी परेशानी है, बत्ती नहीं आती पूरी रात। अगर बच्चे ना सोंदे ना कुछ की करिए, अं नहर ते जाने कपड़े धोन, ठीक है। पानी की कितने दिन की परेशानी आया करती है? 1 महीने तो उत्ते हो गए, ज्यादा दिन हो गए बड़े। पूरा महीना हो गया पानी भी नहीं, केवल थोड़ा छड़ देगे जे जाओ ट्यूबवेल ते उधर उधरली शहर पानी वालों ते कहणगे दफ्तर चल जाओ बाल्टियां लैके। तो अं आखे दफ्तर जाना, सानू की लोड़, अगे साडी किडनियां भी कमजोर है, उधरों नहीं पानी चुक्या जाता साढ़े को, इन्ना बाल्टियां भारियां। जो बंदे ड्यूटियां तो फिर उन्हें रेड़ियां लैके पानी लैन जाना है। दूए मोहल्ले च पानी आंदा तो इस मोहल्ले च क्यों नहीं आंदा? उधरों बला डिग्गा साडा, वो बला भी हुण नवां चढ़ गया, तो उन्होंने तारां भी नहीं बत्ती दियां पाईयां। कोरोना वैक्सीनेशन मड ब्लॉक के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैक्सीनेशन के लिए आए दिन उन्हें उप जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीनेशन उन्हें वापस घर लौटना पड़ रहा है।
इन लोगों के मुताबिक इस समय उनकी धान की फसल लगाने का समय है और वो स्वास्थ्य विभाग के मैसेज के अनुसार सारे कामकाज छोड़कर जब वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। इन लोगों के मुताबिक वो वैक्सीनेशन के लिए अब तक कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोरोना का टीका नहीं लग पाया है। हम 2-3 बार आ चुके हैं। पहला वैक्सीन पहली टीका लगा था हमें, तो अभी तक अभी नहीं लगा। 2 बार हम पहले भी आ चुके हैं, तीसरी बार आ गए। तो हम मुख्याल से आए हैं, सुनीता मेरा नाम है। तो हमें वैक्सीन नहीं लग रही, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। हमें घर का काम करना पड़ता है, तो घर का काम छोड़ के आना पड़ता है। दोपहर इतनी धूप है तो हमें वैक्सीन नहीं लग रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। ये डॉक्टर को पूछो तो वो कहता हमें नहीं पता कब आएगी कब नहीं। तो अभी हम अंदर से इस मैडम को पूछा और डॉक्टर को पूछ कर रहे हैं, अभी नहीं पता कब आएगी कब नहीं। जब आएगी तो लग जाएगी, पता नहीं अब क्या होगा क्या लगेगी। 3 बार आ चुके हैं। आखिर दवाई मुक्की दी डॉक्टर ने आखिर दवाई मुक्की एक टीका लाया पहला गर्मी करी है। साढ़ा के बना देने साढ़े के पुछा गौरमेंट ये गरीबें मारने चार न, ये गरीबें बचा दे मारा देना। फसल बाहर साढ़ा खा चलो लाने वाला बेही 1-1, 2-2, 4-4 बाहर ले देने, उन्हें कुछ पैसा देना किंजा करना के कर दे। कितने बार आई चुके तो कितनी परेशानी होती है? बड़ी परेशानी है, किराया खर्ची कोई गड्डी नहीं कोई किसी नहीं अपने को, बाकी किराया खर्ची आने तो दिक्कत है जी। पर अगे काम हो तो आने अगे नहीं अगे पुछते हैं डॉक्टर क्या आखिर दवाई मुक्की दी है। कल आवे परसों आवे मैसेज करी फसाउन भी नहीं दे अं। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सेंटर में वैक्सीन न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू के तालाब तिल्लो में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सेंटर में पिछले करीब 1 हफ्ते से वैक्सीन ही नहीं है, जिसके चलते अपना कामकाज छोड़कर आए लोगों, दुकानदारों इत्यादि को परेशानी उठानी पड़ रही है। इनका कहना है कि अपना कामकाज छोड़कर वो वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पहुंचते हैं, लेकिन वैक्सीन ही उपलब्ध न होने के कारण उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। जहाँ पे तालाब तिल्लो जो वैक्सीनेशन सेंटर है, आज हमने यहाँ पे आके जो जहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं उनसे मतलब पूछा है कि क्या दिक्कत है कि वैक्सीन जो है वो लोगों को क्यों अवेलेबल नहीं हो रही। तो उन्होंने बताया है कि पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे वैक्सीन है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज जैसे मतलब गर्मी का मौसम है, बीमार लोग हैं, वो अपने घरों से इतनी दूर से पैदल चल के जब जहाँ पे पहुँचते हैं तो आगे पता चलता है कि वैक्सीन है ही नहीं। एक तरफ सरकार ने ये बात कह के कि वैक्सीन जो है ये बहुत जरूरी है, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया हुआ है कि वैक्सीन जो है वो किसी भी तरीके से लगे, लेकिन जब उनका एक वो जो ड्यू डेट होती है कि जिस डेट पे उनको 2nd डोज लगनी है, जहाँ किसी को पहली डोज लगनी है, जब वो जहाँ पे केंद्र पे पहुंचते हैं तो आगे जहाँ से जवाब मिलता है कि वैक्सीन है ही नहीं है। वैक्सीन कब आएगी ये भी नहीं पता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे कि घर घर जाके जो वैक्सीनेशन की जाएगी, तो आज उस वादे पे वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है कि हमें 1 डोज हो चुकी है, दूसरी डोज कब होगी कोई पता नहीं है। कोई किसी तरीके का, सरकार को ये चाहिए कि लोगों के मन में से जो डर सा बैठ गया इसको निकाले और किसी भी तरीके से जो वैक्सीन है लोगों को वैक्सीन दे, ताकि लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें और ये जो कोरोना महामारी है इससे बच सके। जम्मू में बिना परमिशन के चल रही बाहरी राज्य के निजी अस्पतालों की क्लिनिक को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने डायरेक्टर हेल्थ के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इन निजी अस्पतालों द्वारा खोली गई इन क्लिनिकों द्वारा जम्मू वासियों को लूटा जा रहा है, लेकिन कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ से बिना परमिशन चल रही इन क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। अमृतसर के हॉस्पिटल वालों ने यहाँ कम से कम भी 30 क्लिनिक खोले हुए हैं। एक पेशेंट को मुर्गा बनाते हैं, एम्बुलेंस में बिठाते हैं यहाँ से सीधा, और जम्मू के डॉक्टरों को गालियां निकालते हैं, जम्मू के हॉस्पिटल को गालियां निकालते हैं। और ये जो लोग जम्मू वालों को अमृतसर वाले लूट रहे हैं, किसकी परमिशन से वो क्लिनिक खुले हैं, किसने खोले हैं, किसने अनुमति दी? डुल्लू साहब कहते हैं परमिशन नहीं है,
मैडम कहती है परमिशन नहीं है, फिर यहाँ कैसे चल रहे हैं? इसके विषय के अंदर उत्तर देना होगा और उनको पकड़ करके एक लेटर निकालो, उनको बंद करो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।